حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں آئندہ ماہ ہوں گے بلدیاتی انتخابات، حیدرآباد میٹرو ریل کے توسیع منصوبے کی جلد تکمیل، ریاستی کابینہ کے اجلاس میں ہوئے فیصلے۔ GHMC سمیت 4 میونسپل کارپوریشنوں میں میئر کا عہدہ خواتین کے لیے محفوظ، میئر اور چیئرپرسن عہدوں پر تحفظات طے، ماہ فروری میں بلدیاتی انتخابات کا نوٹیفیکیشن متوقع۔ میڈارم جاترا کے ترقیاتی کاموں کا چیف منسٹر نے کیا افتتاح، ریونت ریڈی نے افراد خاندان کے ساتھ پوجا میں بھی کی شرکت۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ورلڈ اکنامک فورم اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ، کویتا نے کی تنقید، ڈاووس دورے کو قرار دیا محض دکھاوا۔ لاٹری اسکیمات کو فروغ دینے والے 2 انفلوئنسرز پر حیدرآباد پولیس نے کیس کیا درج، اداکارہ کراٹے کلیانی کی شکایت پر ایکشن میں آئی پولیس، لکی ڈرا کے نام پر عوام کو دھوکہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں جملہ 116 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات آئندہ ماہ فروری میں کروائے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ریاستی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بہت جلد اعلامیہ کی اجرائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ریاست کی 116 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشنوں کے لیے ماہ فروری کے دوسرے ہفتے تک رائے دہی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا جو چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں میڈارم میں منعقد ہوا۔ ریاستی کابینہ کا یہ پہلا اجلاس تھا جو شہر کے باہر منعقد ہوا۔ چیف منسٹر میڈارم کے دورے پر تھے اور وہ آج صبح سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، کے وینکٹ ریڈی اور سیتکا نے میڈیا کو کابینہ کے فیصلوں سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے حیدرآباد میٹرو ریل کے لیے حصول اراضی کا عمل مکمل کرنے جملہ 2787 کروڑ روپے کی اجرائی کو منظوری دی ہے۔ اجلاس میں مختلف امور پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ حیدرآباد شہر کے عوامی ٹرانسپورٹ نظام کو مزید مضبوط بنانے کی سمت ایک بڑے فیصلے کے تحت تلنگانہ کابینہ نے حیدرآباد میٹرو ریل کی توسیع کو تیز رفتار بنانے کے لیے اہم منظوری دے دی ہے۔ میڈارم میں منعقدہ کابینہ اجلاس میں میٹرو فیز 2 کے لیے اراضی کے حصول کی خاطر تقریباً 2787 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے، جس سے توسیع منصوبے میں درپیش رکاوٹیں دور ہونے کی توقع ہے۔ حکومت نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ موجودہ میٹرو فیز 1 کو LNT سے اپنے کنٹرول میں لینے کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ فیز 2 کے منصوبوں کو مرکز کے پاس منظوری کے لیے پیش کیا جا سکے۔ حکام کے مطابق میٹرو کی توسیع سے نہ صرف ٹریفک دباؤ میں کمی آئے گی بلکہ شہریوں کو تیز، محفوظ اور سستی سفری سہولت بھی میسر آئے گی، جسے حیدرآباد کی مجموعی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے شہری مجالس مقامی کے انتخابات کے پیش نظر 10 میونسپل کارپوریشنوں کے میئرز اور 121 میونسپل کونسلروں کے چیئرپرسنز کے عہدوں پر تحفظات کو قرعہ اندازی کے ذریعے قطعی شکل دے دی ہے، جس کے بعد جلد انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ کمشنر و ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے دفتر میں سیاسی نمائندوں کی موجودگی میں تحفظات کا تعین کیا گیا، جبکہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں رائے دہی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ میونسپل کارپوریشن میں حیدرآباد، نظام آباد، کھمم اور نلگنڈا کے میئر کے عہدے خواتین جنرل کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں، جس کے تحت GHMC میں مسلسل دوسری مرتبہ خاتون میئر کا انتخاب ہوگا، جبکہ کریم نگر، محبوب نگر اور منچریال میں میئر کا عہدہ BC جنرل، راماگنڈم میں SC جنرل اور کوتاگوڑم میں ST جنرل کے لیے مختص کیا گیا ہے۔
अलबत्ता वरंगल वाहिद कॉरपोरेशन है जहां मेयर का ओहदा गैर महफूज रखा गया है। 121 म्यूनसिपालिटीज में 38 चेयरपर्सन के ओहदे BC, 17 SC और 5 ST के लिए महफूज किए गए हैं, जबकि 61 ओहदे आम जुमरे में हैं, जिनमें 31 खवातीन के लिए मखसूस और 30 पर खुला मुकाबला होगा। तहफ़्फ़ुज़ात का तयन 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर किया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए आज 19 जनवरी की सुबह स्विट्जरलैंड रवाना हो गए, जहां वो आला सतही वफद के हमरा आलमी सरमाकारों और मल्टीनेशनल कंपनियों को तेलंगाना में सरमाकारी की तरकीब देंगे। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9:45 पर डॉस के लिए परवास किया, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान तेलंगाना का अलहदा पवेलियन कायम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर 23 जनवरी तक डॉस में क़याम के बाद 24 जनवरी को अमेरिका रवाना होंगे और 1 फरवरी को वतन वापस आएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज मेडारम जात्रा के तरक्याती कामों का मायना किया और वहां कुछ कामों का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। रेवंत रेड्डी ने आज सुबह अपने अफराद खानदान के साथ मेडारम जात्रा के पूजा प्रोग्राम में भी शिरकत की और तरक्याती व तज़ायन नौ के कामों का मुशाहिदा किया। चीफ मिनिस्टर इस पूजा के बाद हैदराबाद वापस हुए और वो डॉस के लिए रवाना हो गए, जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत की जानिब से मेडारम जात्रा के लिए मुस्तकिल इंतजामात और तरक्याती कामों का आगाज किया गया था, जिनमें कई कामों की तकमील हो गई है। हुकूमत ने इन तरक्याती कामों पर जुमला 251 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यात्रा के हुदूद में चीफ मिनिस्टर के हाथों कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया गया। इस मौके पर मेडारम के कई कबायली पुजारी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर कल ही मेडारम पहुंच गए थे और वहां रियासती काबीना का इजलास भी मुनक़्क़द किया गया था। आज सुबह तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया और चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी पूजा में शिरकत भी की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने संगारेनी कॉलीरेस कंपनी के टेंडर्स में किसी भी तरह की बदउनवानियों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है और कहा कि वो गुज़िश्ता 40 वर्षों से अवामी जिंदगी में हैं और बेदाग सियासी कैरियर रखते हैं। उन्होंने बताया कि बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए इनके सियासी इमेज को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत ने इल्जामात के बाद सिंगारेनी कॉलीरेज में टेंडर्स को मनसूख कर दिया गया है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि जहां तक टेंडर्स का मामला है, इसका फैसला सिंगारेनी कंपनी का बोर्ड करता है और इसमें रियासती उज़रा का कोई रोल नहीं होता। सियासी मुखालिफिन इनके इमेज को दागदार बनाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना और तेलंगाना अवाम से होने वाली नाइंसाफियों को खत्म करने के लिए ही उन्होंने सियासत में कदम रखा था और गुज़िश्ता 40 वर्षों से अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड रखते हैं। इनका तवील सियासी करियर बेदाग रहा है और वो कभी भी बदउनवानियों का हिस्सा नहीं रहे। I have asked the Singareni management and the board seriously examining ఇటువంటి ఎలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మంత్రిగా నా పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఐ వాస్ దెమ్ టు ఐ హావ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ నాట్ ఓన్లీ ఆస్ టు క్యాన్సిల్ ద టెండర్ అండ్ గో ఫర్ ఎ ఫ్రెష్ టెండర్ విత్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ లో ఏ కండిషన్స్ ఉంటాయో అటువంటి కండిషన్స్ అన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి మళ్ళీ పిలవండి. డోంట్ గో బై దిస్ సేమ్. ఇంతవరకు అంటే వాళ్ళు చెప్పింది సార్ టెండర్ ఇప్పుడే పిలిచాము, ఇంకా అసలు ఎవరు పార్టిసిపేటే చేయలేదు, అప్పుడే ఎవరికో ఇచ్చినట్టు ఎవరికో ఇవ్వటం కోసం దీంట్లో చేస్తున్నారని రాసిన దానికి మేమెట్లా బాధ్యులు అంటే నేను చెప్పాను దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పార్ట్, లీవ్ ఇట్. ఆ రాసిన ఆయనకి ఎవరి మీదో ఏదో ప్రేమ ఉండొచ్చు, లేకపోతే నేను మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిధులుగా ఉండటం వల్ల రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఉన్నట్టు కోపంతో నా మీద కూడా కోపం చూపించడానికి राशि ఉండదు. साबिक रियासती वजीर और रुकने असेंबली BRS हरीश राव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव के हवाले से बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं।
हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के इन बयानात की मजम्मत की, जिनमें उन्होंने तेलुगु देशम कारकुनों से कहा था कि वो बीआरएस को खत्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे। हरीश राव के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कायम की गई थी और रेवंत रेड्डी खुद तेलुगु देशम छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि एनटीआर ने कांग्रेस के खिलाफ नेशनल फ्रंट तश्कील दिया था। उन्होंने कहा कि एनटीआर के ख्वाब सिर्फ उसी वक्त पूरे हो सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। हरीश राव ने मजीद इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने साइट विजिट सर्टिफिकेट के नाम पर एक ऐसा निज़ाम मुतारफ करवाया जिसमें टेंडर्स ऑनलाइन ना डाले जाएं, बल्कि ठेकेदार साइट जाकर सर्टिफिकेट हासिल करें, जिसके जरिए रेवंत रेड्डी पहले से जान लेते हैं कि टेंडर्स कौन दे रहा है और बाद में इन्हें धमकी देकर टेंडर्स मनसूख करवाते हैं और अपने नजदीक के लोगों को दिलवाते हैं। ఎనీ ఓబీ టెండర్ -10 to -22 ఉంటుంది. కానీ మన రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ అనే కొత్త విధానం తెచ్చిన తర్వాత అన్ని టెండర్లు కూడా +7 నుంచి +10% పోతా ఉన్నాయి. నిన్న బట్టి గారు కేవలం 9E బ్లాక్ మాత్రమే సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ ఉంది గనక ఆ టెండర్ రద్దు చేస్తామన్నారు. మరి వీటి సంగతి ఏంది? ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ వెనుక ఉన్న కుట్ర ఏంటంటే, అదర్వైజ్ ఆన్లైన్ టెండర్లు ఉంటే ఏమవుతుంది? దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయినా ఎవరైనా అనుభవం ఉన్న కాంట్రాక్టర్లు ఆన్లైన్లో డైరెక్ట్గా టెండర్ వేయొచ్చు. तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और इनके डॉस दौरे को महज दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से जाना और वापस आना ही इस सफर का असल हासिल रहा और 2 साल गुजर जाने के बावजूद वज़ीर आला ये नहीं बता सके कि तेलंगाना को हकीकत में क्या हासिल हुआ। कविता ने रियासती हुकूमत के दावों की निशानदेही की कि डॉस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में 2024 में 40,232 करोड़ और 2025 में 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी हुई, जबकि ये सब महज तशहीर तक महदूद रहा। उन्होंने हैदराबाद में हालिया तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान हुकूमत के दावे भी याद दिलाए, जिसमें 5,75,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी का ऐलान किया गया था। कविता ने वज़ीर आला से मुतालिबा किया कि तमाम दावों की सच्चाई वाज़े करने के लिए एक वाइट पेपर जारी किया जाए ताकि अवाम को असल सूरत हाल मालूम हो सके। हैदराबाद में पुलिस महकमा में बड़े पैमाने पर इंतजामी रद्दोबदल करते हुए पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने एक ही दिन में 54 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादलों के अहकाम जारी किए। ये तबादले हैदराबाद में पुलिस कमिश्नरेट के तहत मुख्तलिफ शोबों में अमल में आए, जिनमें सेंट्रल क्राइम स्टेशन और साइबर क्राइम विंग नुमाया तौर पर शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक तवील अरसे से एक ही शोबे में खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान को इंतजामी व इस्लाहाती ज़रूरियात के पेश नज़र तब्दील किया गया है। अहकामात के तहत 26 सर्कल इंस्पेक्टरों को फौरी तौर पर रिलीव करके सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है, जबकि बंजारा हिल्स, फिल्मनगर और एबिश जैसे हसास व अहम इलाकों के इंस्पेक्टरों के भी तबादले किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर साइबर जराइम में इजाफे के तनाजुर में ऐसे शोबे में नई इस्लाहात नाफिज करने और कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नए अफसरान की तैनाती को अहम कदम करार दिया जा रहा है। फिट इंडिया मिशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना और हार्टफुलनेस फाउंडेशन की जानिब से संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद डॉक्टर एम रमेश IPS ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये रैली पुरजोश अंदाज में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की सिमत आगे बढ़ी। इसके शुरा में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। कहा गया है कि फिटनेस को फ़रोग देने के लिए ये प्रोग्राम संडे ऑन साइकिल शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम दरअसल 2023 में होने वाले दौलत मुश्तरका गेम्स को फ़रोग देने के मकसद से भी मुनक़्क़द की गई। दिसंबर 2024 से संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है और ये अब तक 1,75,000 मुकामात तक रसाई हासिल कर चुकी है। इस रैली को हिंदुस्तान भर में जुमला 22 लाख मुकामात तक पहुंचाने का निशाना है। कहा गया है कि फिटनेस और सेहत को फ़रोग देने ये प्रोग्राम अहमियत का हामिल है और साइकिलिंग के अलावा योगा और दूसरे वर्जिश को भी फ़रोग दिया जाएगा। इस प्रोग्राम का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में भी तज़ाकिरा किया था।
हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से लॉटरी स्कीमात को फरोग देने पर 2 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन पर इल्जाम है कि इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इन स्कीमात को फरोग देने की कोशिश की थी। अदाकारा कराटे कल्याणी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। अदाकारा कराटे कल्याणी ने कहा था कि कई लॉटरी स्कीमात को लकी ड्रॉ के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। अपनी शिकायत में उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि तोहफे देने के नाम पर आवाम को लुभाया जा रहा है और यूपीआई इस्तेमाल करके इनसे रकूमात हासिल की जा रही थी। अवामी एतमाद हासिल करने के लिए मंदिरों में भी इन स्कीमात और लॉटरियों के वीडियोस तैयार किए गए थे। इन शिकायत की बुनियाद पर सिटी पुलिस ने इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन पर धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के खिलाफ वर्जी के दफात लगाए गए हैं। सिकंदराबाद जोन की डीसीपी मोहतरमा रक्षिता कृष्णा मराठी आईपीएस ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन का बाकायदा मुआयना किया और डिवीजन में मौजूद तमाम पेट्रोल गाड़ियों और ब्लू कॉलेट्स की जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने एडी ड्रिल किट्स, टैबलेट्स, गाड़ियों की देखभाल और पॉपुलर डिवाइसेस के साथ साथ ग्रेव क्राइम केस डायरी फाइल्स और रॉडिशीटर्स रिकॉर्ड्स का भी जायजा लिया। डीसीपी ने स्टाफ को किसी भी किस्म की बदउनवानी से गुरेज की सख्त हिदायत देते हुए अवामी तामुल में शाइस्तगी और डायल 100 कॉल्स का फौरी जवाब देने पर जोर दिया। उन्होंने रॉडिशीटर्स और जराइम पेशे अफराद पर मुस्तकिल निगरानी रखने, दोबारा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और पॉस्को साइबर क्राइम्स और जायदाद के जराइम में तहकीकात के बारीक बीनी से मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। मलकाजगिरी के रुकन असेंबली मर्री राजशेखर रेड्डी ने जोनल कमिश्नर श्री संचित कांगोरा से कॉरपोरेटर्स और बीआरएस कायदीन के हमरा मुलाकात करते हुए हल्के असेंबली से मुतालिक अहम तरक्याती मसाइल पर याददाश्त पेश की। मुलाकात के दौरान बुनियादी सहूलतों से जुड़े उमूर पर तवज्जो दिलाई गई, जिनमें अलवाल हाई टेंशन डबल रोड के कामों का फौरी आगाज, 7 कॉलोनियों के ड्रिंक मैन मसले का मुस्तकिल हल, तालाबों की सफाई व जदीद कारी, खराब सड़कों की मरम्मत और अधूरे कम्युनिटी हॉल्स की तकमील शामिल हैं। एमएलए ने हल्के के मसाइल के मुस्तकिल जायजे के लिए माहाना रिव्यू मीटिंग मुनक़द करने की तजवीज़ पेश की, जिसमें जोनल कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस मौके पर मुंतखब अवामी नुमाइंदे, पार्टी कायदीन, कॉलोनियों के नुमाइंदे और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। मलकाजगिरी में मिशन स्वच्छ भारत के तहत आज सुबह 8 बजे खुसूसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी बैतुल खला की कारकर्दगी का मुआयना और शहरियों में सफाई के हवाले से शौर बेदार किया गया। इस मौके पर श्री जोनल कमिश्नर संचित गंगवार IAS ने BOT टॉयलेट्स का जायजा लिया और शहरियों से अपील की है कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल साफ रखें, खुले में यूरिन या कूड़ा ना फेंकें, दुकानदार अपना कूड़ा मखसूस कचरेदान में डालें और घरेलू कचरे के लिए स्वच्छ ऑटो टिप्पर की सहूलत इस्तेमाल करें ताकि माहाना 100 रुपये की अदायगी के जरिए मलकाजगिरी को कूड़ा फ्री बनाया जा सके। कमिश्नर ने खबरदार किया कि सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस मनसूख और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इलावा अजीज सरदार पटेल नगर में अवामी कचरे के ठिकाने और स्वच्छ ऑटो टिप्पर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और शहरियों को रोजाना कचरा देने की अहमियत से आगाह किया गया। शहर में बढ़ते हुए सड़क हादसात की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नशा में ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम में मजीद तेजी लाते हुए सख्त कार्रवाई की है। 16 और 17 जनवरी 2026 को जारी 2 रोज़ा स्पेशल ड्राइव के दौरान शराब के जेरे असर गाड़ी चलाने वाले 305 ड्राइवरों को धर लिया गया, जिनमें 242 2 पहिए गाड़ी सवार, 26 3 पहिए और 27 4 पहिए दीगर गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने 2 टोक अंदाज में कहा कि नशा में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और अवामी सलामती के मुफाद में इस तरह की खुसूसी कार्रवाइयां आइंदा भी बिला तवक्कुफ जारी रखी जाएंगी। साथ ही शहरियों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और महफूज सड़कों के लिए पुलिस से भरपूर ताउन करें।
पुराने शहर में छतरीनागा पुलिस स्टेशन के हुदूद शमशेरगंज में इतवार की रात कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक शराब की दुकान के बाहर यह कत्ल किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल की CH सतीश की हैसियत से शनाख्त की गई है और पुलिस को शुबा है कि पुरानी मुकासिमत के नतीजे में इसका कत्ल किया गया। पता चला है कि एक शख्स ने तोलजा भवानी वाइन शॉप के बाहर सतीश पर चाकू से हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। सतीश को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मसरूफ सड़क के करीब वाक़े शराब की दुकान के बाहर कत्ल की वारदात से सारे इलाके में सनसनी पैदा हो गई थी और पुलिस की टीम ने फौरी वहां पहुंचकर नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। क्रूज टीम को तलब करके शवायद जमा किए गए। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावर की शनाख्त और तलाशी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। Okay, sir. हिंदी ये आज रात 9:50 पर शमशेरगंज के रोड पे एक सतीश बोल के एक आदमी जा रहा था, तो यहाँ पे आया था, तो उसके कोई फ्रेंड्स बोल के मालूम हो रहा, दो आदमी आके उसके ऊपर अटैक करके हमला करके स्टैबिंग करे। इमीडिएट पुलिस वाले आए, आके उनको उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट करे। वहाँ पे ब्राडेड बोल के मालूम हुआ और फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो कुछ भी अक्यूड है वो लोगों को अरेस्ट करेंगे। सर, सतीश का एज क्या था? उन्होंने कहाँ के रहने वाले थे? एज अराउंड 30 साल है। उन्होंने यहीं शमशेरगंज एरिया में रहते बोल के मालूम हो रहा। नेटिव ऑफ उन्होंने कर्नाटक के बोल के मालूम हो रहा। गोल्ड स्मिथ काम करते कहते हैं। उनको शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। सर, लोग अंदर बैठ के यहाँ पर पहले ड्रिंकिंग किए क्या सर? इसके बाद बाहर आए कैसा? वो एक बार पता करना हम लोग, वो उसका CCTV फुटेज भी वो पूरा हम लोग सीज करे। फर्दर डिटेल्स क्या है, उन्होंने क्या है, किधर गए, किधर जा रहे थे, क्या है, कैफो है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में अपने को मालूम पड़ता है। ये मैरिड है सर सतीश? हाँ, मैरिड है। उनको एक बच्चा है और भाया बहना है बोल के मालूम है। ओके सर। आदिलाबाद के सरकारी उर्दू स्कूल बालक मंदिर में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टॉन सदर नज़ीर अहमद की सदारत में 10वीं जमात के तलबा में सालारे मिलत मॉडल पेपर सीरीज़ की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर निज़ामत के फ़राइज़ ज़िले सदर हज सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल ने अंजाम दिए और सालारे मिलत मॉडल पेपर की खुसूसियात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल, पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसी तादाद मौजूद थी। आप लोगों के लिए आलिम वन बुक आप लोगों के लिए लाई जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बच्चों से और बच्चियों से, कि आप लोग इस पे अच्छा अमल और इसके ऊपर अच्छे से अच्छा सर्च करके अगर इसमें पास हो गया, आपके वालिद का और वालिद का नाम रोशन होगा और आपके स्टेट का नाम रोशन होगा। आदिलाबाद के मुस्तकर के महल्ले संजय नगर वार्ड नंबर 44 में RTO ऑफिस के करीब मुजवजा रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के बायस मकानात और तिजारती दुकानात को मुमकिना नुकसान के अंदेशे पर मुकामी अवाम में तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में वार्ड के रिहायशी अल-फतेह यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सदर और कांग्रेस रुकन शेख सलीम ने मुतासरीन के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए अगरचे ओवर ब्रिज की तामीरी अवामी सहूलत के लिए एक बेहतर इक़दाम है, ताहम इसके नतीजे में कई मकानात और दुकानात के इन्हेदाम का खदशा है, जिससे लोगों को शदीद माली नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि ताहाल इंतजामिया की जानिब से मुआवजा या माली इमदाद के बारे में कोई वाज़े ऐलान सामने नहीं आया है। हालांकि इस ज़िमन में ज़िले कलेक्टर को याददाश्त पेश की जा चुकी है। मुकामी अवाम ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तामीराती अमल के दौरान मुतासिर होने वाले मकानात और दुकानात के मालिकान को फौरी और मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए, ताकि मुतासिरीन को नाइंसाफ़ी से बचा जा सके। यहाँ सब लोग इकट्ठा होने का एक ही वजह है कि ये जो भी ROB रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का जो भी वर्क अंडर प्रोग्रेस है, इसकी वजह से कई लोगों का जो रोज़ी रोटी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो लोग कई सालों से 10 से 15 साल यहाँ करीब 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं और तकरीबन जो घर यहाँ पर है जो कि 40-45 साल से है और वो लोगों का घरों का भी इसमें लिस्ट में फाइनलाइज नहीं हुआ, उनके लिस्ट में नाम अभी नहीं है। तो लिहाजा मेरी जो भी कलेक्टर साहब है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है,
ये लोगों को कंपनसेशन मुआवजा जो भी है सही तरीके से दिया जाए, और जो लास्ट टाइम जो सर्वे हुआ था, जो भी मार्किंग हुई थी, वो उसको बढ़ाकर 15 से 20% एक्सटेंड बढ़ा दिए उसको। तो लिहाजा हम जो भी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, बस यही गुजारिश कर रहे हैं कलेक्टर साहब से, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी है रीसर्वे कराया जाए और फेयर कंपनसेशन दिया जाए। ज़मीन जा रही है तो इसका मुआवजा भी हमें मिलना चाहिए और जगह भी बताना चाहिए जो जा रही ज़मीन में। घरा तो नहीं टूटना चाहिए, घरा टूट गए तो बेघर हो जाएंगे, सब कैसे रहेंगे। अंदर 4-5 घर छूट गए, 4 जनों के 5 जनों के, वो आप सही तरीके से सर्वे करके हमारा जो भी है कराना। कलेक्टर साहब करीब आज ही दिए हम जाके, और इससे पहले आरडीओ मैडम कने भी जाके आए और आरएमपी डिपार्टमेंट में गए। तो दर कुछ नहीं है, आके आप सर्वे सही तरीके से करके सही देना, जिसका जा रहा उसको देख बोल के हमारी एक ही मांग है कलेक्टर साहब से। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आइंदा माह होंगे बल्दियाती इंतखाबात, हैदराबाद मेट्रो रेल के तौसी मंसूबे की जल्द तकमील, रियासती काबीना के इजलास में हुए फैसले। जेएचएमसी समेत 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में मेयर का ओहदा खवातीन के लिए महफूज, मेयर और चेयरपर्सन ओहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात तय, माह फरवरी में बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुतवक्किल। मेडारम जात्रा के तरक्याती कामों का चीफ मिनिस्टर ने किया इफ्तिताह, रेवंत रेड्डी ने अफराद खानदान के साथ पूजा में भी की शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना, कविता ने की तनकीद, डॉस दौरे को करार दिया महज दिखावा। लॉटरी स्कीमात को फरोग देने वाले 2 इन्फ्लुएंसर्स पर हैदराबाद पुलिस ने केस किया दर्ज, अदाकारा कराटे कल्याणी की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस, लकी ड्रॉ के नाम पर अवाम को धोखा। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।